اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، بڑی خوشی اس بات پر ہو رہی ہے کہ آپ حضرات علمی گفتگو سن کر بھی بڑے اطمینان سے تشریف فرما ہیں اور آگے بھی سننے کا ارادہ رکھتے ہیں، ورنہ عام طور پر ہمارے یہاں جس طریقے کی تقریریں رائج ہیں، جس طریقے کے جلسے سنے جاتے ہیں، یہ یقیناً اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ مزہ آپ کو نہیں ملے گا جو مزہ آپ کو عام طور پر ملتا ہے، اور تقریر کا جو معنی ہوتا ہے، تقریر واعظ کو کہتے ہیں نا، اور واعظ کے معنی پہ اگر غور کر لیں گے تو حقیقت میں اسی طرح کے جلسے تقریر پر صادق آتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے جو اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ سب ہمارے علاقائی علماء کرام ہیں، اور یہ سب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے علمی کارنامے انجام دیے اور آگے بھی کر رہے ہیں۔ اپنے اپنے علاقے میں جو جہاں پہنچے وہاں پر علمی کارنامے انجام دیے۔ ابھی بیان ہوا کہ کس طریقے سے ہمارے حضرت قاری سعید اختر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ جو لوگ ممبئی جاتے ہیں یا جو لوگ وہاں رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے مخدومیہ کو کس پستی سے اٹھا کر کس بلندی تک پہنچایا۔ ہمارے بڑے بھائی کی طرح حضرت مولانا عبید الرحمان صاحب قبلہ ہیں، جو لوگ ان کو آپ سب ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں، اور ایک عالم ہوتے ہوئے بھی انہوں نے گریجویشن ڈگری کالج تک کمپلیٹ کروایا۔ یہ کوئی چھوٹا کارنامہ ہے، یہ کوئی چھوٹی فکر کا آدمی کر سکتا ہے؟ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر فکری پختگی ہے، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر قوم کو تعلیم سے آراستہ کرنے کا بے لوث جذبہ پیدا۔ ہم نے دیکھا ہمارے ہی علاقے سے قاری ابو الحسن صاحب قبلہ، مولانا اقبال صاحب وغیرہ وارثیہ پہنچے، لکھنؤ میں دارالعلوم وارثیہ جیسا ادارہ قائم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ صرف دینی ادارہ قائم کر دیا ہو، بلکہ اس کے ساتھ بھی وارثیہ انٹر کالج کا قیام ان کی بھی فکری بلندی پر دلالت کرے۔ ہمارے ہاں قاری صاحب قبلہ اور مفتی عبدالوحید صاحب قبلہ کا دورہ جب لوٹے، انہوں نے ارادہ بنایا کہ اپنے علاقے میں کچھ کیا جائے، تو آپ کے سامنے جامعہ رضویہ گلشن برکات کی عمارت ہے، اور رضا انٹر کالج اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ کو صرف دنیاوی تعلیم کی، دینی تعلیم کی فکر نہیں دی، بلکہ قوم کی تعلیم و ترقی کا راستہ وہ جانتے تھے کہ جتنا ضروری ہماری قوم کی تعلیم و ترقی کے لیے دینی تعلیم ہے، اتنا ہی ضروری دنیاوی تعلیم بھی ہے۔ اسی لیے انہوں نے رضا انٹر کالج کی تعلیم بھی رکھی۔ محترم سامعین کرام، یہ علماء کرام جو بیٹھے ہیں آج، یہ کوئی عام علماء نہیں ہے، یہ کوئی ایسے علماء نہیں ہے جن کو آپ سمجھے کہ بس ایسی ہیں۔ ان کے اندر وہ بلندیاں ہیں، وہ فکری بلندیاں ہیں۔ حضرت مولانا زاہد عبداللہ پوری صاحب، حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب وغیرہ، ان لوگوں نے اپنے اسکول قائم کر رکھے اداروں کے ساتھ ساتھ، انہوں نے بڑے کام کیے۔ ان کو فکر ہے تعلیم کی، ان کو فکر ہے قوم کی، یہ رات دن قوم کی فکر میں گھلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج اسٹیج پہ کتنا مجمع ہے، کتنے لوگ ہیں، اور یہ کوئی نذرانے کے لیے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں، نہ ان کو کوئی نذرانہ ملے گا۔ یہ لوگ نذرانے کے لیے نہیں آئے، ان سے پہلے بتا دیا گیا تھا
کہ یہ پروگرام جو ہے آپ کی فکر کو آگے بڑھانے کے لیے ہے، یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کے درد کو قوم کے سامنے رکھنے کے لیے ہے، یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کے خیالات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے، یہ پروگرام جو ہے وہ قوم کی تعلیم و ترقی کے لیے ہے۔ اور یہ علماء کرام، یہی علماء کرام ہیں جن کو لوگ چھوٹی نظر سے دیکھا کرتے ہیں، یہ آج آپ کے لیے اپنا پیسہ خرچ کر کے، اپنا قیمتی وقت نکال کر کے رات میں آج یہاں موجود ہے، صبح یہ اپنے اپنے کلاس جوائن کر کے بچوں کو پڑھاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ آپ کے یہاں یہ صرف دینی جذبہ اور قوم کا درد ہے ان کے سینوں میں جو انہیں آج یہاں کھینچ کر لے کر گیا۔ یہ آپ کی ترقی چاہتے ہیں، یہ قوم مسلم کی ترقی چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قوم کے بچے جاہل کے خطاب سے مخاطب نہ کیے جائیں، بلکہ ان کو عالم اور علم والے کی پہچان کے ساتھ جانا جائے۔ ان لوگوں نے بڑے تعلیمی کارنامے انجام دیے، جو جہاں پہنچے، وہ ایک کسی شاعر نے کہا ہے نا، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ یہ سب اپنے اپنے جگہ نایاب ہے، لیکن انہوں نے سوچا، ان سب نے 2018 میں میٹنگ کی کدورہ جامعہ رضویہ گلشن برکات کے اندر، اور یہ طے کیا، یہ معاہدہ کیا، یہ عہد کیا کہ ہم نے جہاں گئے ہم نے بڑے کام کیے ہیں۔ ہم ممبئی گئے ہیں تو وہاں ہم نے بڑے کام کیے ہیں، ہم لکھنؤ گئے ہیں تو ہم نے وہاں بڑے کام کیے ہیں، ہم فتح پور گئے ہیں تو ہم نے وہاں بڑے کام کیے ہیں، بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، بڑے بڑے ادارے کھڑے کر دیے ہیں۔ اب ہم اور آپ سب مل کر کے اپنے علاقے میں تعلیمی بیداری کے لیے کام کریں گے، اپنے علاقے کے ہر بچے تک علم کی روشنی پھیلائیں گے۔ اسی لیے یہ پروگرام مسلسل منعقد کیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحریک علماء بندیل کھنڈ، تحریک علماء بندیل کھنڈ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کو معلوم ہے علم کی روشنی کیسے پھیلتی ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ میں ابھی آیا جب یہاں دوپہر میں دوپہر سے لوگ عجیب سوال کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا یہاں شادی ہو رہی ہے کیا، کوئی کہہ رہا تھا کھانا ہو رہا ہے کیا، کوئی کچھ عجیب چیزیں ہو رہی تھی۔ اور ایک صاحب نے کہا یار آپ کے پوسٹر میں نے دیکھا اس میں کسی پیر صاحب کا نام نہیں تھا۔ محترم صاحبین کرام، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جلسے میں ہر کسی کا نام ہو جائے۔ ہم اور آپ ہم کام کو ترجیح دینے والے ہیں۔ جو لوگ بے لوث دلی جذبہ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ۔ ہمارے یہاں جو کام کرے گا، آج ہم لوگ جو علم کی دولت سے آراستہ ہیں، آپ کو معلوم ہے یہاں کونے پر یہ سید صاحب قبلہ تشریف فرمائے، سید ریاض صاحب باغی، ان کے والد صاحب سید مظہر صاحب آپ سب جانتے ہوں۔ انہوں نے پتا ہے ہمارے گاؤں میں مکتب چلانے کے لیے کتنی محنت کی۔ آپ لوگ اپنے ہاں مکتب نہیں چلاتے، مکتب بند کر دی ہے آپ نے۔ دین کی اصل تعلیم جو ہوتی ہے وہ مکتب سے ہوتی ہے، اور مکتب میں ہم سوچتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کوئی حافظ رکھ دیں، کوئی مولوی رکھ دیں اور مکتب کامیاب ہو جائے گا۔ نہیں ہوتا، بلکہ مکتب کی ضرورت تو یہ ہے کہ مکتب میں جو سب سے بہترین عالم ہو، جس کی فکر سب سے بلند ہو، جس کے عزائم سب سے پختہ ہو، ایسا آدمی مکتب میں رکھا جائے، تب قوم میں ترقی کیا کرتے ہیں۔ حضرت سید مظہر میاں صاحب قبلہ نے، آپ کو معلوم ہے جب ہم لوگ پڑھے ہیں جس مکتب سے ہمارے گاؤں میں آج تقریباً 15-16 علماء کرام پیدا ہوئے ہیں، اس مکتب کے لیے ان کے والد صاحب نے، سید مظہر علی صاحب قبلہ نے، کدورہ میں ڈبہ لے کر کے بازار میں سبزی کی دکانوں میں گھوما۔ ایسے نہیں ادارے چلتے ہیں۔ گاؤں کا ادارہ چلانے کے لیے کدورہ کی سبزی کی دکانوں کا دورہ کیا ہے، تب اتنے علماء پیدا ہوئے ہیں۔ اور آپ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے، ساری فراوانی ہوتے ہوئے، ساری آسائشیں ہوتے ہوئے، سینکڑوں روپے لٹانے کے باوجود ہم نے دیکھا ہے یہی پر کتنے پیسے لٹائے جاتے ہیں، اور آپ کے یہاں مکتب نہ چلے، بڑے افسوس کی بات۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اگر مکتب نہ چلا سکے، ہم جلسوں میں 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ روپے کے قوال کو دے دیں بلانے کے لیے، اور ہم ایک امام نہ رکھ سکے،
मस्जिद में। कितने अफसोस की बात, अगर हम जितना एक कव्वाल को साल भर में देते हैं, अगर उतना पैसा इमाम के लिए निकाल दें, वो रात भर में जितना ले जाता है उतना 10,000 रुपया महीना भी अगर देंगे किसी आलिम को, तो पूरे साल की उसकी तनख्वाह 1,20,000 होगी। और वो आपको बेहतरीन इल्म दीन भी सिखाएगा और उसके साथ आपके बच्चों को दीन की तालीम से भी आरास्ता करेगा। तो आप एक रात का सौदा करना तो मंजूर करते हैं, लेकिन उतने ही पैसे के बदले में एक पूरे साल का सौदा नहीं करना चाहिए। मोहतरम सामीन, हम क्या कर रहे हैं? किसी शायर ने कहा था कि बन गए तिनके नशेमन के कफस की तीलियां, बन गया क्या, हम चले थे क्या बनाने के लिए? अरे हम तो दुनिया को इल्म की रोशनी देने के लिए आए थे, हम तो दुनिया को ये बताने के लिए आए थे कि तुम तालीम के जेवर से आरास्ता हो जाओ। हमारा कुरान जब नाजिल होता है तो लफ्ज़ इक़रा से नाजिल होता है। हमारे यहाँ कहावत मशहूर है कि उतलबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ के गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। हमारा कुरान कहता है हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? उसके बावजूद हमारा हाल ये है कि इल्म में अगर कोई कौम सबसे पीछे है तो वो हमारी कौम। मोहतरम सामीन, गौर करें कि हम किस लिए दुनिया में भेजे गए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो कुरान में इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए जाहिर किए गए हो, तुम लोगों के लिए जाहिर किए गए हो, जिनको तुम भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। अपने अंदर जरा झांक करके देखो कितना ये अंसुर पाया जाता है, कितनी तरक्की हमारे अंदर है तालीम में, कितना हमारा किरदार अच्छा है। क्या हम लोगों को सिखाएंगे? जुमा के दिन जुमा की नमाज के वक्त भी हमारे यहाँ जुआ के फल देखे जाते हैं। और आजकल तो नए नए जुआ के तरीके इजाद हो गए। मोबाइल पर क्रिकेट टीम बनाकर कहीं जुआ खेला जा रहा है, कहीं लूडो के जरिए जुआ खेला जा रहा है, कहीं किसी और तरीके से। लोग सोचते हैं ये नाजायज नहीं होगा, ये तो हम क्रिकेट टीम बना रहे हैं, वो इनाम मिल रहा है, ये भी जुआ है। ये इसीलिए आपको लगता है कि ये नाजायज नहीं होगा क्योंकि आपके पास इल्म नहीं है। अगर इल्म होता तो जानते कि ये भी जुआ है और ये भी उतना ही हराम है जितना ताश के पत्ते लेकर के ग्रुप बनाकर खेलना जितना हराम है, उतना ही हराम ये टीम बना करके जुआ खेलना है, उतना ही हराम ये लूडो में बैठ करके जुआ खेलना है या किसी और तरीके से जुआ। लेकिन हमारे यहाँ तो तालीम ही की कमी है ना, असल फुकदान तो यही है। हम सोचते हैं हमारे यहाँ गरजदार तकरीरें हों, बढ़िया लच्छेदार तकरीरें हों, अल्फाज की बारिश हो, एक के बाद एक दीगर जुमला निकलते रहें और नुक्ते के नाम पर कुछ भी सर्व किया जाता रहे, हम सुनते रहते हैं। मोहतरम सामीन, तकरीरों का मिजाज बदलिए, अपनी समातों का मिजाज बदलिए। हम और आप, आज लोग कह रहे थे, कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा हजरत कि ये बेमौसम जलसा कैसा, हमें समझ में नहीं आ रहा है और ये नाम क्या है कहने लगे। ये बेमौसम जलसा कैसा? जलसे तो मुहर्रम में हुआ करते हैं, जलसे तो 12वीं शरीफ में हुआ करते हैं, जलसे तो रजब के महीने में होते हैं, ये बेमौसम जलसा कैसा है? मोहतरम सामीन किराम, ये मौसम के हिसाब से जो हमने जलसे किए हैं ना, इन्होंने हमें इल्मे दीन से दूर कर दिया है। क्योंकि जब हम मुहर्रम में जलसा करते हैं तो हम सिर्फ इमाम हुसैन के वही करबला के वाक़यात सुनते रहते हैं, वही मुकर्ररों की मनगढ़ंत बातें सुनते रहते हैं और वहाँ खेमे से निकल करके मैदान में जाने तक हर साल वही चीज सुनते रहते हैं, वही वाक़यात सुनते रहते हैं। हम जलसा जब 12वीं शरीफ में करते हैं तो हमारे मुकर्रर आते हैं और वो बंधे हुए होते हैं कि वो 12वीं शरीफ में आए हैं तो हुजूर की सीरत पर ही गुफ्तगू करेंगे, और वो हुजूर की सीरत पर भी गुफ्तगू नहीं करते बल्कि वही चंद मोजज़ात पर, 10-12 मोजज़ात पर अटके हुए हैं। पूरी सालों की तकरीरें उठा करके देख लीजिए, उनकी इसी मोजज़ात पर अटके हुए हैं। हम इसी तरीके से आगे बढ़े, जब बुजुर्गाने दीन के साथ प्रोग्राम करते हैं तो सिर्फ उन्हीं की बातें होती हैं और उनकी भी करामतों का तज़किरा होता है, उनकी जिंदगी के रोशन नुकूश की बात नहीं होती, उनके जिंदगी की बेहतरीन बातों की बात नहीं होती हमारे यहाँ। और हम, जब लोगों ने कहा ना कि पीर का नाम नहीं है, कोई पीर नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूँ, बड़ी जुर्रत के साथ कहना
चाहता हूँ, मेरा किसी की तरफ कोई इशारा नहीं है, लेकिन जब पीरों के साथ जलसे होते हैं तो पूरे जलसे में सिर्फ पीर साहब की तारीफ होती है, लेकिन दीन का कोई पैगाम वहां नहीं पहुंचाया जाता। मोहतरम सामीन किराम, इसीलिए हम लोग अलग जलसा करते हैं, बिन मौसम जलसा करते हैं कि हमारे उलमाए किराम जो उनके दिल में है वो आपसे बता सके, जो दर्द अपने दिलों में छुपाए हुए हैं वो दर्द आपके सामने रख सके, कौम की तालीम की बात कर सके, कौम की तरक्की की बात कर सके, वो जलसे के उन्वान के साथ बंध ना जाए, वो जलसे के उन्वान के बोझ के नीचे दब ना जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, तहरीके उलमाए बुंदेलखंड, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। हमारे प्रोग्राम पूरे इलाके में होते हैं, हमारा 17वां प्रोग्राम है तहरीक की बुनियाद के बाद से, और हमारे प्रोग्राम सिर्फ तालीमी बेदारी पर होते हैं। हमारी कोशिश ये होती है, हमारी जो वर्कशॉप होती हैं, जो लोग कदौरा में वर्कशॉप में ज्वाइन हुए थे कुछ लोग, वो जानते होंगे कि किस तरह की बातें हमारी वर्कशॉप में होती हैं, हमारी तालीमी कॉन्फ्रेंस जो होती है वो किस तरह की होती हैं। अगर हम यही जलसे आजाद कर लें, अपने जलसों को आजाद कर लें, और जलसे जब हम करते हैं इतना पैसा खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी मोटी रकमें देकर के मुकर्रिर को बुलाते हैं, आप 1-2 महीना पहले से तारीखें लेते हैं, आप ये क्यों नहीं कर लेते कि आपने महल्ले की जरूरत को समझे, जितने लोग जलसा करा रहे हैं कम से कम वही लोग बैठ करके तय कर ले कि हमारे यहाँ किस चीज की ज्यादा जरूरत है, और मुकर्रिर साहब को लिख करके दे दे कि आपको हमारे यहाँ इस चीज की कमी पाई जाती है, आपको अपनी तकरीर में सिर्फ इसी चीज के बारे में बोलना है। आप ये क्यों नहीं करते, उन्वान क्यों नहीं देते अपनी तकरीरों को, मुकर्रिरों को? और जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, अपने गिरदो पेश की कमियों को महसूस करना शुरू कर दिया, और उन प्रोग्रामों में उन कमियों पर गुफ्तगू कराना शुरू कर दी, तो उन कमियों के बारे में आप कमाऊ जान भी जाएंगे और उनसे बचने का तरीका भी आपको मिलेगा। मोहतरम सामीन किराम, हमारे यहाँ जो इस तरह के जलसे राइज हो गए जिनमें रटी रटाई तकरीरें होती हैं, जो लोग रटी तकरीरें करते हैं उनको रटने में एक तकरीर साल भर लगती है, और साल भर में उन्हें 50 प्रोग्राम करने हैं, तो एक ही तकरीर से कई साल काम चलाते हैं। आप YouTube पर जाइए, कुछ मुकर्रिर जो बहुत मशहूर हैं जिनको आप बुलाना चाहते हैं और बुलाते हैं, उनकी 10 तकरीरें सुन लीजिए, और 10 तकरीरें घूम फिर करके एक ही तकरीर होगी, और आप बुलाते हैं क्योंकि वो लच्छेदार बोलते हैं, वो रटी हुई, 1 साल मेहनत की उन्होंने। और जब वही चीजें बार बार घूम घूम कर आप सुनते रहेंगे तो फिर आपको कैसे मालूम होगा कि आपके बच्चे तरक्की कैसे करेंगे, आपको कैसे मालूम होगा कि आपका बच्चा, अक्सर हमारे बच्चे जितने भी पढ़ते हैं वो सीधा इंटर के बाद BA करने चले जाते हैं, या बहुत ज्यादा अगर तरक्की याफ्ता समझा अपने आप को तो वो BCom करने चले जाते हैं। आपके बच्चों को कैसे मालूम होगा कि यही BCom और BA जो है इनका क्रेज खत्म हो चुका है, इनकी डिमांड दुनिया से खत्म हो चुकी है, अब दुनिया जो है वो AI की तलाश में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तलाश में है, और आने वाले 50 साल इसी का दौर है। आपके बच्चे कैसे जानेंगे कि अब उन्हें BA नहीं करना है, अब उन्हें BSc नहीं करना है, बल्कि उन्हें AI की तैयारी करना है और इसके लिए अपने जी जान को लगाना है? ये कैसे जानेंगे जब आप मुक़य्यद जलसे करेंगे, बंधे हुए जलसे करेंगे? हकीकत है। कौम से हम कलाम होने के लिए, कौम से बात करने के लिए 2 जगह है हमारे पास, एक है मस्जिद, दूसरा है जलसा। मदरसा, आप कहते हैं मदरसे में कितने लोग जाते हैं? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है 2%, और कोरोना के बाद मैं कहता हूं कि 0.5% ही, सिर्फ आधा % रह गए, बस सिर्फ आधा %। और वो कितना कर लेंगे? आपको दीन की बातें आपसे डायलॉग करने, आपसे बात करने के जरिए कौन से है? मस्जिद, जहां जुमा में हमारा हर बच्चा जमा होता है। आपको मालूम है कि एक नेता एक रैली में पब्लिक लाने के लिए कितनी कोशिशें करता है? सब सियासत से ताल्लुक रखते हैं ना, सब जानते हैं कि कितनी कोशिश करता है, कितना पैसा खर्च करता है, कितनी गाड़ियां लगाता है, और तब जाकर के उसे कुछ ऑडियंस मिलती है, कुछ लोग मिलते हैं जिन्हें वो अपनी बात कह सके, सुना सके। और हमारे यहाँ जुमा के दिन हर घर से कोई न कोई मस्जिद में जरूर मौजूद होता है, हर घर तक उस नेता जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है इस बात के लिए कि
मस्जिद में एक अच्छा समझदार आलिम रखने की जरूरत है। अगर हम अपनी मस्जिद में एक अच्छा आलिम इमाम रख लेंगे तो हमारे हर घर का हर घर का एक न एक फर्द मस्जिद में जरूर जाता है। और जब जुमा के दिन इमाम खड़ा होकर के कौमी मसाइल पर गुफ्तगू करेगा, आपकी खामियों पर गुफ्तगू करेगा, आपकी तरक्की की राहों पर गुफ्तगू करेगा, तो फिर देखिए आप कैसे तरक्की नहीं करते। आपके पास तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसका आप इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। हमारे इमाम कैसे रखे जाते हैं? जो बस नमाज पढ़ा लेता है उसको इमाम रख लो। इमाम सिर्फ नमाज पढ़ाने के लिए नहीं है, इमाम कौम का इमाम होता है और वो उसी वक्त इमाम होगा जब उस लायक हो। दूसरा जरिया हमारे यहाँ जलसे होते हैं, तो जलसों को हमने बताया कैसे उन्वान मुंतखब कीजिए, आजाद कीजिए जलसों को, कैद मत कीजिए। जलसे कैद होंगे तो आपकी फिक्र कैद हो जाएगी, जलसे आजाद होंगे तो आपकी तरक्की की राहें हमवार हो जाएंगी। मोहतरम सामीन, अभी आपको बहुत उम्दा खिताबात, बहुत उम्दा हमारे असातिज़ाए किराम, इनको समाप्त करना है, इनकी बातें सुनना है। बड़ी खुशी की बात है कि आप इतनी खुश्क तकरीरें सुनकर भी बैठे हुए हैं। इससे महसूस होता है, इससे हमें यकीन होता है कि वाकई कौम अब हालात को देख करके तब्दीली चाहती है। अब कौम चाहती है कि उन्हें तरक्की की रास्तों पर लगाया जाए। इंशाअल्लाह ये हमारे उलमाए किराम जितने यहाँ पर जमा हुए हैं, ये कौम के दर्द अपने सीनों में लेकर के जमा हुए हैं और ये इसी तरह से आपके लिए जमा होते रहेंगे अगर आप इसी तरह इनकी बातें सुनते रहे। इंशाअल्लाह अगर ये काम चलता रहा तो हमारी सबकी तालीम और तरक्की का बेहतरीन इंतजाम होगा। आप किसान हैं, आप एक तालीम के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपके सामने से चला जाऊंगा। आप सब किसान हैं, आपने किसानी की है, बहुत सारे बुजुर्ग किसान भी हैं यहाँ पर। आपको याद होगा कि आप जब बीज बोते थे पहले तो अपना ही बीज रख लेते थे, वही दूसरी साल बो देते थे, वही तीसरी साल बो देते थे, उसी से बीजा के लिए बचा लिया, बाकी खाया पिया बेचा जरूरत के लिए। और फिर 2-3 साल बाद जब बदलना होता था तो अपने खेत का पड़ोसी को दे दिया, पड़ोसी के खेत का अपने में कर लिया, बीज बदल गया और काम चलता रहा, उपज बराबर होती रही, कमी नहीं हुई। यही होता था ना। लेकिन अब आप किसान हैं, अभी भी आप किसानी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि बीज कितनी मर्तबा आप बो सकते हैं, आप कितनी मर्तबा वो उतनी ही उपज दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 मर्तबा। चाहे एक खेत बगल वाला बदल लीजिए, चाहे 10 खेत के बाद उसे बो दीजिए, उसमें उपज उतनी नहीं होने वाली। जानते हैं आप ये क्यों? ऐसा क्या हो गया? बीज तो वही है, आप कहें खाद की वजह से, खाद की वजह से नहीं है, ये जेनेटिक तब्दीलियों की वजह से है। जो कंपनियों ने बीज पर रिसर्च करके उनमें जो जेनेटिक तब्दीलियां की हैं, उन्होंने उसकी उपज को जो ज्यादा दिनों तक होने वाली थी उसको समेट करके 3 साल में ले आए हैं। जो खेत आपका 6 बीघा पैदा करता था वो 8 बीघा पैदा कर रहा है। लेकिन उसका नुकसान ये है कि जो बीज आपका 10 साल चलता था वो सिर्फ 3 साल रह गया है। और लोग इस पर ये करेंगे। आपको ये मालूम है कि दुनिया में बीज का सबसे बड़ा प्रोडक्ट कौन बनाता है? इजराइल। सबसे ज्यादा बीज दुनिया में जो बीज पे रिसर्च करता है और जो अलग अलग तरह के ज्यादा उपज वाले बीज बनाता है वो इजराइल। इजराइल ऐसा देश है जिसे आज भी दुनिया में बहुत सारे मुल्क देश ही नहीं मानते, और उसने इतनी तरक्की की कि आज पूरी दुनिया में इजराइल के रिसर्च किए हुए बीज उपज रहे हैं। आपको मालूम है कैसा देश, जिसे बहुत सारे लोग देश का दर्जा भी नहीं देते, उसका बीज पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। और उसने अपने इल्म की बुनियाद पर, अपनी तालीम की बुनियाद पर बीज के साथ क्या किया? बीज की जो उपज की क्षमता 10 सालों की थी उसे 3 साल में समेट दिया। आगे वो ये करेगा कि सिर्फ एक बार बीज उपजाया जा सकेगा, सिर्फ एक बार उस बीज से फायदा उठाया जा सकेगा। और आज अमेरिका ताकतवर है हथियार पेश करके, लेकिन कल इजराइल जब पूरी दुनिया की बीज इंडस्ट्री पर पूरी तरीके से कब्जा कर चुका होगा, तब वो कह देगा उसी देश को बीज मिलेगा जो मेरी फौकियत तस्लीम करेगा।
अगर इजराइल ने 4 साल बीज देना बंद कर दिया, सारी दुनिया घुटनों पर आ जाएगी। और ये किसकी बुनियाद पर होगा? क्या ये उनकी इबादतों की बुनियाद पर होगा? क्या ये उनकी खिदमतों की बुनियाद पर होगा? क्या ये उनके जूतियां सीधी करने की बुनियाद पर होगा? नहीं नहीं, ये अगर होगा तो सिर्फ उनके इल्म की बुनियाद पर होगा। और हम और आप खोए हुए हैं, हमें पढ़ना ही नहीं, हमें पढ़कर क्या करना? हम तो जन्नत चले जाएंगे ना। हम कुरान शरीफ का एक पेज उठा करके रख देंगे, जन्नत चले जाएंगे। हमें यही तो बताया जाता है, यही हम सुनने आते हैं जलसों में। हम ये सुनने नहीं आते कि हमारी कौम का मुस्तकबिल कितना तारीख हो रहा है और हमें इसे कैसे तापनाक बनाना है। मोहतरम सामीन, अपनी समातों का मिजाज बदलिए। हर मजेदार चीज जो होती है ना, वो फायदेमंद नहीं होती। आप सब बाप हैं, आप सबके बेटे होंगे, आप अपने बेटे से मोहब्बत करते रहिए, सिर्फ मोहब्बत करिए। क्या वो सही रास्ते पर रहेगा? आपको उसे डांटना भी पड़ेगा। और आप सिर्फ तकरीरों में सोचते हैं कि सिर्फ यही सुनाया जाए कि बस कैसे हमारी बख्शिश हो जाएगी, कैसे हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी, तो आपकी कामयाबी मुमकिन ही नहीं है जब तक कि आपको अपनी खामियों से सुनने की आदत ना हो जाए, अपनी कमियां सुनने की आदत ना हो जाए, अपनी लापरवाहियां सुनने की आदत ना हो जाए। और जब तक ये चीजें आपको सुनाई नहीं जाएंगी, आप ख्वाबे गफलत में पड़े रहेंगे। आपको मालूम ही नहीं होगा कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे अंदर क्या खामी है, हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं। डॉक्टर इलाज करता है ना, चीरा लगाता है, आपको उल्मा की बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन डॉक्टर आपका जिस्म चीर देता है, उससे नाराज नहीं होते। क्यों नाराज नहीं होते? आपको यकीन होता है कि नहीं, ये हमारे लिए सही कर रहा है, आज चीर रहा है लेकिन कल ये जख्म सही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आलिम कड़वी बात कह करके चला जाए तो दिन भर गालियां बकी जाती हैं, बल्कि कई हफ्तों तक चाय की दुकानों में, चौराहों में बैठकर बका जाता है, यार वो ऐसी सी बातें कह गया, हम लोगों को जाहिल कह गया, हम लोगों को ऐसा कह दिया, हम लोगों को ऐसा कह दिया। यहाँ आपका वो फार्मूला अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या आलिम आपका दुश्मन है? क्या बताने वाले आपके दुश्मन है? वो भी वही मल्ला है, वो भी वही जर्राह है, वो भी वही मुआलिज है, वो भी वही डॉक्टर है। डॉक्टर तो आपके जिस्म का इलाज करता है और आपके जिस्म को चीरता है। आलिम चूंकि जिस्म का मुआलिज नहीं है, आलिम रूह का मुआलिज है, तो आलिम ऐसी बात कहता है जिससे आपकी रूह को तकलीफ पहुंचे और वही तकलीफ आपकी रूह की इस्लाह का जरिया बनती है। ये चीजें सुनना शुरू कीजिए, सुनिए कि हमारी खामियां क्या हैं, सुनिए कि हमारी गलतियां क्या हैं, सुनिए कि हम इन्हें कैसे सुधार सकते हैं। ये उलमाए किराम अपनी तमाम तर कुर्बानियों के साथ तैयार हैं कौम में तब्दीलियों के लिए। ये उलमाए किराम आज जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके कदमों को चूमा जाए, मैं खुद इनके कदमों को चूमूं, तब भी मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा कि इन उलमाए किराम के कदमों को मुझे चूमने का शर्फ हासिल हुआ है। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके दिलों में कौम का दर्द है, जिनके दिलों में कौम की हमीयत है, जिनके दिलों में कौम की गैरत है, जिनके दिलों में कौम की बेदारी का जज्बा बिना है। मोहतरम सामीन किराम, हम और आपको इल्म हासिल करना होगा। इल्म ही आने वाली दुनिया की कामयाबी की कुंजी है, बल्कि हमेशा से है। इसीलिए तो हमारे आका ने फरमाया है, इसीलिए तो हमारा कुरान लफ्ज़ इक़रा से नाज़िल हुआ है। क्या उसका पैगाम समझ नहीं आता? मोहतरम सामीन किराम, आप हजरात को भी बहुत सारे खिताब समाअत फरमाने हैं, इसलिए मैं बस इतनी ही बात के साथ आपके सामने से रुखसत होना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आप सब लोग उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे उलमाए किराम की गुफ्तगू आप समाअत नहीं फरमा लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हम सबको इल्मे दीन सीखने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक रफीक मरहमत फरमाए, तमाम तरह के उलूम हासिल करने की तौफीक रफीक मरहमत।